हाउ डू यू कम्युनिकेट योर आइडियाज? क्योंकि जो बुक्स हमको पढ़ाते हैं वही बुक्स टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, बट हाउ डू यू प्रेजेंट दैट नॉलेज, हाउ डू यू कम्युनिकेट द एग्जैक्ट थॉट्स दैट यू हैव इन योर माइंड is, I believe, what differentiates IIMs from tier 2 or tier 3 B schools or any other colleges. Hi everyone, I hope you're doing good. So I get asked a lot about my life learnings and insight post IITB. So recently I was having a discussion with one of my friend who is from IIM Tusik. जहाँ पे हम लोग इसी बारे में एक बहुत casual discussion कर रहे थे. So I thought why not record it for larger audience ताकि आप सबको भी insights मिल सके. We have also touched based upon the topic like is IIT or IIM both in today's era. So ये वीडियो बहुत insightful होने वाली है आप लोगों के लिए. Also please mind, I wanted to give you honest feedback जो बिल्कुल raw हो. इसलिए ये जो discussion अभी आप वीडियो में देखने वाले हो ये बहुत unscripted और unfiltered है. इसलिए ये जो discussion हुआ है ना हमारा ये बहुत लंबा भी चला है. And that's the reason I have divided this video into part 2. So अगर आप part 1 में बहुत अच्छे से support कर by liking the video, please comment down part 2 so that I will roll out part 2 of the video. And I believe ये part 1 जो है आपके लिए बहुत insightful होने वाला है. So please support करना, like करना, share करना इस video को. Also I have 2 surprises for you. So first surprise is that I am starting a new series जहाँ पे I am calling industry experts across industries and careers ताकि आप लोगों को जेन्युइन इंसाइट्स मिल सके. इसलिए ये सीरीज ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो भी कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले हैं, बट इवन फॉर दोस्त जो किसी एक जॉब में हैं बट दे आर थिंकिंग फॉर मोर एडवांस करियर या करियर स्विच का लेकर है. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आपसे ये मिस ना हो जाए एंड यू आर अपडेटेड विद द ट्रेंड ऑफ जॉब मार्केट. एंड द सेकंड सरप्राइज इज अ गिव अवे जो आपको वीडियो के लास्ट में जाके पता लगेगा. तो वीडियो को लास्ट तक देखना and I wish you all the very best and enjoy the video. ऐसे डिस्कस कर रहे थे अपनी आफ्टर लाइफ आफ्टर IIT and IIM. So we thought we'd record it for larger audience क्योंकि हमारा डिस्कशन हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है उस वन के साथ. Let's Yes, start. indeed. Yes. So what do you think? मतलब IIT IIM worth it है? मतलब post it how's your life? So this is what I've learned from IIM. Depends. Like Friends is the answer. depends is the answer, but it's a very subjective answer. मतलब डिपेंड करता है यार. अगेन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. आपके गोल्स क्या हैं, आपको प्रोफेशनली कहाँ पे जाना है, आपको पर्सनली कहाँ पे जाना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर आई थिंक डिपेंड करेगा. आई थिंक यू वुड अग्री. तुम्हारे लिए IIT जाने का रीज़न कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए IIM जाने का रीज़न कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है. बट ऑन द कॉन्वोकेशन डे एट द एंड ऑफ the course or getting my degree, I think सब लोग seem satisfied. जिसका जो भी I would say सब लोग तो नहीं but 99% लोग जो होते हैं वो satisfied दिखते हैं. Everybody seems to have achieved what they wanted or they are a step ahead in whatever they want. तो in that sense particularly मेरे केस में मेरे को professionally कहीं पे जाना था and even if I have not reached there, I think I am a step ahead by getting a degree from an IIM. Rather pose this question ki what changes you have seen yourself once you are out of college. That would be a better question to propose, right? Okay. That can't be subject. That will depend on your experience. But हाँ इससे दूसरों को ऐसे learnings तो मिल ही सकती है कि अच्छा ये improvement आया है या improvement या कोई भी experience, right? But and Just in case, like in terms of goals, I just wanted to know, like, if you have achieved your goal or not, or do you feel that you are a step ahead or not? yeah, of course. Like, suppose my goal is this, right? So I've taken one step ahead. मतलब पूरा goal में भी नहीं achieve हुआ हो, but हाँ थोड़ा goal के closure तो है. अच्छा मतलब I'll share one experience मतलब what I posed this question, right? कि what changes you have seen in yourself. तो मतलब from after so I have been in different colleges like tier 1 में भी रही हूँ, tier 2 या 3 में भी रही हूँ, ठीक है? Same goes with you, right? सो बहुत मेजर डिफरेंस ऐसा आता है कि पोस्ट दैट आई हैव लर्न टू डू मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली. मतलब मल्टीटास्किंग पहले भी करते थे, सभी लोग करते हैं कॉलेज के टाइम पे, ठीक है? बट आई अपोज दैट क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना कि एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और द अदर. ऐसा तो नहीं कि सब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जा रहे हैं. POR के लिए हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं. मतलब हाँ ये है कि एफिशिएंटली आई कैन मल्टीटास्क. I can time management जो एक चीज़ है, the most prominent skill set which I learned from my tenure at IITB. What's about you? So, like suddenly something hit me. So during our last project, you know, like the last of the last project of the last course. So usually we used to work in groups. So we were a 5 group. We had 5 people in our group,
सो बस हमको बीच में थोड़ा सा टाइम मिला ऐसे प्रोजेक्ट के बीच में जो भी हम असाइनमेंट कर रहे थे, हमको थोड़ा सा ब्रेक आर मिला, लाइक वी हैड अ मीटिंग तो उसके लिए ब्रेक आर मिला. सो हम लोगों ने ऐसा वी वेंट टू द व्हाइट बोर्ड, वी यूज्ड टू डू इट इन द क्लासरूम, एंड वहाँ पे वी स्टार्टेड लिस्टिंग डाउन कि व्हाट इज ऑल दैट वी हैव गेन आउट ऑफ एमबीए apart from the degree that we would be taking in the next 1 week. What all is that we have found? What I found was there were hundreds of items for 5 people, but very different for each of them. Like, for example, one of my friends, she wrote that she was not that confident when she joined IIM, but now she's very much confident. She can talk to anybody on any topic that is going on, even if she does not has any knowledge about it. ये एमबीए सिखाता है? You know, ये MBA सिखाता है. I think that is what MBA teaches you. So you just gather information. You just gather information from the person you're talking, and then you start talking about it. And there is a high possibility कि जब वो conversation end होगा, you are more knowledgeable than the person you are. That is one thing, one instance that hit me. For me particularly, I think yes, confidence builds up. You can go and talk to anybody you want, and you don't hesitate while you talk. And I think that is one of the most important things that we need to learn, both in our professional corporate life and both like in personal as well, for sure. Apart from that, I believe जो technical skills आप लोग को मिलता है, I think more in IITs, less in IIMs. हम लोगों के पास mostly Excel and PowerPoint होता है. IITs, I am sure that, especially when you are in CS, I think they teach you a lot of languages which are required for like artificial intelligence आ रहा है, machine learning आ रहा है, इस सब के लिए that all is required. Technical skills, I would say, is only 20% of what you get from an IIM specifically. 80% is on your soft skills or your people management skills. How do you manage people? So the major thing that I would say कि मैंने सीखा है is how you present yourself in front of a large audience. How do you communicate your ideas? क्योंकि जो बुक्स हमको पढ़ाते हैं वही बुक्स tier 2, tier 3 कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं. But how do you present that knowledge? How do you communicate the exact thoughts that you have in your mind? Is, I believe, what differentiates IIMs from tier 2 or tier 3 schools or any other colleges. Yeah. Quality of education तो है ही, मतलब जो differentiator है. Quality of education है. Same professors भी अगर tier 2, tier 3 में पढ़ाएंगे, I think peers is one of the things that differentiates IIMs and IITs. Tier 2, tier 3 में most of the people, they are not, or maybe even if they want to, I believe crowd का जो ratio है serious and non-serious people का, वो काफ़ी differentiate करता है tier 1 and tier 2, tier 3 colleges में. I was talking to, like, this is not just my only, मतलब ये सिर्फ मेरा ऐसा conclusion नहीं है, like मैं ऐसे mentorship वगैरह करते रहता हूँ, you know about it. So अभी मैं एक बात ही कर रहा था, इनफैक्ट कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था. दैट इज व्हाट इट टोल्ड मी. मेरे को दिखा वो कि वो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है उस सब्जेक्ट में जिसमें हम बात कर रहे थे. But he was still struggling to get a job because he told me कि like we were talking about case studies. So case studies में what I told him कि the approach is कि आप लोग दो लोग आपस में बैठ के या एक ग्रुप में बैठ के आप लोग आपस में केस स्टडी को प्रैक्टिस करो कि that is the best way to do a case study. But he told me कि it is very rare, and I was shocked. He told me it is very rare to find somebody else who is so serious about getting a job. I won't name the college. College going student. He is a college going student. He told me कि इतना सीरियस कोई है ही नहीं कि मैं उसके साथ बैठ के केस स्टडी प्रैक्टिस कर सकूं. एंड जब मेरे को अपना टाइम याद आया, हमारे टाइम पे पीपल वर डाइंग कि मेरे साथ केस स्टडी कर लो, मेरे साथ केस स्टडी कर लो, मेरे को कोई टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. पीपल वर लिटरली डाइंग कि सबको ही केस स्टडी करना था क्योंकि एवरीबडी वांटेड टू प्रिपेयर इट, एवरीबडी वाज सीरियस अबाउट गेटिंग अ जॉब और मे बी व्हाटएवर दे वांटेड. इवन इफ समवन वाज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, उनको ज़्यादा ये रहता था कि जितना हो सके उतना ज्ञान हासिल की जा सके, जितना हो सके उतना पीयर टू पीयर लर्निंग हो सके. So not about the teaching, not about the methodology. I think it's more about the peers that you get at IITs or IIMs or any other tier 1 schools. I mean, वो इतना प्रिपरेशन के टाइम पे इतना ग्रिल्ड हो जाते हैं हम सब लोग, मतलब खुश और जो भी प्रिपरेशन करते हैं. बिकॉज आई रिमेम्बर माई टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वाज डूइंग अ जॉब. ठीक है, तो जो भी वीकेंड्स होते थे यूजली जो भी जॉब पे जाते हैं उनका क्या सीन रहता है कि गेट आउट फॉर आउटिंग या क्लब वगैरह कहीं भी जाए. बट आई वॉज रिलीजियसली डूइंग माई वर्क या टेस्ट सीरीज जो भी देना होता था. सो समहाउ आई बिकम मोर डिसिप्लिन कि ऑफिस के बाद आके अपना प्रैक्टिस करना है. एंड दैट्स व्हाई यू गेट सो फोकस कि आप मैनेज कर पाते हो कि ये सब चीज़ें करनी है. सो आई थिंक दैट्स अ फैक्टर पियर्स वाला. एंग्री विद यू. इतना ग्रिल होके जाओगे ना तो तुम इतना, फिर उसके बाद इतना सब ध्यान भटकेगा नहीं तुम्हारा शायद.
रिमाइंड्स मी, तो मतलब ऐसा एक है, और देयर इज अ कोट कि जो चीज़ मेहनत से मिलती है उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है. सो दैट स्टेज ट्रू हियर एज वेल. और आई थिंक ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाला ना, जो यू सेड कि वन ऑफ योर पीयर वाज रेडी टू टेक इनिशिएटिव एंड स्पीक अपॉन एनी टॉपिक, यही होता है क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं. मतलब आईआईटी बॉम्बे में क्या होता है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो पीएचडी वालों के साथ भी, बीटेक वालों के साथ भी. लाइक आई टू इंटरेक्टेड विद माय जूनियर्स अ लॉट. तो मतलब हाँ, यही होता है, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी होती है, तो यू गेट समथिंग. और सबके पैशंस भी अलग होते हैं. लाइक फॉर माई लर्निंग इज कि जो भी कोई फ्रेंड होता है हमारा, तो उसका जो भी साइड पैशन है ना, जैसे यू आर गुड इन पॉलिटिक्स एज वेल. So something I learned any other day, a new thing about politics. So you can learn anything like more related to technology. So ये भी होता है, once you are in that group, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो learning मिल ही जाता है. एग्जैक्टली. जस्ट अ पॉइंट ऑन दैट कॉन्फिडेंस वाले पे. सो होता क्या है ना कि से somebody is a CEO at some X firm. तो व्हेन यू सी कि वो आईआईटी बॉम्बे से है, और से किसी एलुमनाई मीट में वो आया है, या से वो आईएम कोझिकोड से है, वो किसी एलुमनाई मीट में आया है, तो जब वो आप वहाँ पे आके बात करता है ना कि आई हैव बीन थ्रू दीज हॉस्टल्स, आई हैव बीन थ्रू दिस क्लास, एंड वो फिर आगे बोलता है कि मैं भी ऐसे ही करता था जैसे तुम कर रहे हो, सो दैट वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है कि यार ही इज फ्रॉम द सेम फिटर्निटी है, यहीं से निकल के गया है. So it is not very difficult to be at the top tier positions, be in the C-suite. So वहाँ पे वो confidence बहुत ज़्यादा ऐसा push मिल जाता है. तो जो alumni network है, I think that is one of the things which gives you the confidence. वो confidence डिग्री से नहीं, वो confidence alumni से आता है. कि तुम्हें पता है कि वो जो Y firm का CEO है ना, वो मेरा senior है. तो उसने पढ़ा है जहाँ से उसने पढ़ा है, मैंने वहाँ से पढ़ा. Right. Also, I think perks में I would count this as well. तुम्हारी understanding बढ़ जाती है. Not just about what you have studied, but what all is going around in the world. राइट, क्योंकि तुम somehow तुम जिस मेथोडोलॉजी से पढ़ के आए हो, से तुम जैसे हमारे वहाँ पे केस स्टडी मेथोडोलॉजी रहता था, तो वो पहले स्टोरी समझाते थे, केस पढ़ाते थे, एंड देन बोलते थे सॉल्यूशन लेके आओ. सो आई थिंक पूरा वर्ल्ड वैसे ही चल रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिटिक्स में भी कुछ भी आ गया है, मतलब कुछ भी नया सिचुएशन आ गया या कुछ भी नया प्रॉब्लम आ गया, हाउ डू यू सॉल्व इट. तो आई थिंक सिमिलर मेथोडोलॉजी से तुम रिलेट कर सकते हो, या कुछ भी, मतलब तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तुम उसको सिमिलर मेथोडोलॉजी से रिलेट कर सकते हो. मतलब मेरे एग्जांपल में तो मैं बहुत जगह पे गेम थ्योरी लगाता हूँ, मतलब मैं पर्सनल डिसीजंस में गेम थ्योरी लगाता हूँ. आई हैव शेयर्ड अ लॉट विद यू रिगार्डिंग दैट. मैं पर्सनल डिसीजन लेने के लिए भी गेम थ्योरी एक्सेल खोल के बैठ जाता हूँ, गेम थ्योरी लगाना शुरू कर देता हूँ. और दिस इज वन ऑफ द पर्क्स दैट आई वुड काउंट. You said about game theory, so I remember कि हमारे आईटी में क्या होता है ना कि आप किसी भी बैकग्राउंड से, मतलब आप सीएस में हो एंड सपोज सी है, पर आप एमबीए कोर्स भी ले सकते हो once you meet your credits. So I also took this course from Seoul. So that's why I was smiling, that okay, I also apply somewhere. Like subconsciously you tend to apply कि अच्छा ठीक है, next step क्या हो सकता है उसका. Like intentionally ना चाहते हो, but हाँ ऐसा mind तुम्हारा बन जाता है. हाँ, बट ये भी एक पर्क है, मतलब यू आर ओपन टू टेक एनी कोर्सेज. तुम पॉलिटिकल साइंस से लो, तुम इकोनॉमिक्स से लो, किसी से भी लो. सो दैट्स ऑल्सो अ पर्क. मतलब इतने कॉलेजेस में होता नहीं है, मतलब 5 to 3 में. या एग्जैक्टली. सो टॉकिंग ऑन द इलेक्टिव्स थिंग, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अब आया है, लेकिन आई थिंक आईआईटी एम्स में बहुत पहले से इलेक्टिव्स वाला चल रहा है. सो आई एम टू मच इनटू इंडियन माइथोलॉजी. तो हमारे वहाँ पे देयर वाज अ कोर्स विच मेंशंस मैनेजमेंट लर्निंग्स फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता. तो मैंने वो पढ़ा था. सो भगवत गीता is like, it sounds very different from what you are learning in the corporate world, but somehow somebody is joining that in a course. That is, I think, what you get when you get a choice of electives. So choice of electives तो is very, I think it's very prevalent in IIMs as well. मतलब तुमको प्रोडक्शन पढ़ना है, तुमको एचआर पढ़ना है, तुमको मार्केटिंग पढ़ना है. जनरली क्या होता है कि एमबीए में यू हैव टू सेलेक्ट अ स्ट्रीम. आई थिंक दैट इज सिमिलर विथ एमटेक एज वेल, और एनी मास्टर्स यू डू, तुमको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सेकंड ईयर में या जो भी है तुमको सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ईयर में ही हो जाती है एक्चुअली कि एमटेक सीएस है ना, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल्स. बट हमारे तो जो थीसिस टॉपिक होता है वो सेकंड ईयर में. आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन. कि सेकंड ईयर में यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी योर थीसिस टॉपिक. राइट. सो एमबीए में मतलब जनरली आईएम्स में जितना मैंने देखा है इलेक्टिव्स ही रहता है. सो यू नीड नॉट सेलेक्ट कि मेरे को फाइनेंस में एमबीए करना है. यू कैन गो अहेड एंड से कि मेरे को 6 सब्जेक्ट हैं, मतलब तुमको क्रेडिट्स अपने पूरे करने होते हैं. सो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में यू कैन से कि मेरे को 2 सब्जेक्ट फाइनेंस के पढ़ने हैं, लेकिन मेरे को साथ में एक सब्जेक्ट मार्केटिंग, एक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, ऐसे भी पढ़ना. तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू गेट व्हेन यू हैव इलेक्टिव्स वाला सिस्टम. तो स्पेसिफिकली मैंने तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी के सब्जेक्ट्स ज़्यादा लिए थे, बट मार्केटिंग भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, जस्ट इन केस कि पूरा समझ में आना चाहिए कंपनी काम कैसे करती है.
उसमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है. It's like jack of all, ace of Jack of exactly. Jack of all trades, master of none. But yeah, one in your case, I spent. I would not say that. I would not say that. I would not say that. I would not say that I'm ace of one. I keep looking out for opportunities in everything that I can. First, we should be open to opportunity. We should seek opportunity. फिर भी हो सकती है कहीं पे भी. So that's a good. And you should be a jack. You should not be a master of one. Otherwise, you can't lead. If you're if you are a specialist, I believe that it is very difficult to lead. I think with changing, evolving this, environment with technological advancement, you need to have knowledge. Like even if you are not from a tech background, you should know what AI में क्या advancement हो रहा है. At least a briefing कि अच्छा ऐसे चल रहा है. तो ये तो होना चाहिए. Exactly. You should maybe you do not know the technical part of it, but तुमको ये पता होना चाहिए how are things working. मतलब सिंपल है, मतलब क्या इनपुट डल रहा है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्या आउटपुट आ रहा है. अगर इतना भी समझ में आता है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट इनफ टू लीड और सफिशिएंट इनफ टू हैव द कंसेप्चुअल लर्निंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क. तो उज्जवल ये बताओ IIM में कैसे पढ़ाई करते हैं या कुछ और भी करते हैं एक्टिविटीज हम लोग. पढ़ाई आई वुड से आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस कि जो पढ़ाई होता है वो 20% ही होता है. बाकी 80% चीज़ें हम जो करते हैं वो पढ़ाई नहीं होता है, बट उससे तुम पढ़ाई वाली चीज़ें सीख जाते हो. ठीक है. IIT में ऐसे नहीं होता. तो आई वोंट टेक पार्ट. स्पेसिफिकली IIM की मैं बात कर रहा हूँ. अनलेस यू वांट अ गोल्ड मेडल फ्रॉम IIM, तुम सिर्फ 20% पढ़ाई कर रहे हो. 80% चीज़ें तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हो, लेकिन उनसे तुम पढ़ाई सीख जा रहे हो. क्योंकि IIM में क्या डिग्री मिल रही है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तुम मैनेजमेंट सीख रहे हो. 80% चीज़ें तुम जो भी कर रहे हो, से बहुत सारी, मतलब हमारे वहाँ पे 20+ क्लब्स, कमिटीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप्स थे. तो अगर स्पेसिफिकली जैसे मैं प्लेसमेंट्स ऑफिसर्स टीम में था, तो अगर मैं ये भी मैनेज कर रहा हूँ कि दूसरा बंदा अपना CV कैसे बना रहा है, तो वहाँ पे मैं ये सीख जा रहा हूँ कि बाकी कंपनीज में काम किस तरह से होता होगा. क्योंकि अगर मैं CV पॉइंट्स उसके देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि उसने सैमसंग में क्या काम किया है या उसने गूगल में क्या काम किया है, सो आई गेट अंडरस्टैंडिंग कि काम होता क्या है, किस रोल पे क्या काम है. ऐसे ही अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड की बात करूँ जो डांस क्लब में था, ठीक है, तो डांस क्लब में जब वो इवेंट मैनेज कर रहा है, तो वो ये सीख जा रहा है कि इवेंट की मैनेजमेंट कैसे होती है. वो ये सीख जा रहा है कि फंड कैसे रेज होता है. वो ये सीख जा रहा है कि स्पॉन्सरशिप कैसे आती है. वो ये सीख जा रहा है कि इवेंट का शेड्यूल कैसे बनता है. तो वहाँ से आई थिंक ऐसे टीम मैनेजमेंट वाली चीज़ें थोड़ी आ जाती हैं सीखने के लिए, एंड उनको तुम यूज़ कर सकते हो कॉर्पोरेट में, पर्सनल लाइफ में. सो आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में डायरेक्टली तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बट वहाँ से तुम मैनेजमेंट सीख जा रहे हो. इसीलिए कॉलेज भी ऐसी चीज़ों को फंड भी करता है और प्रमोट भी करता है. तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब टीम मैनेजमेंट सीखते हैं, तुम्हारे अंदर कब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया. बट वो जब व्हेन यू आर पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज एंड व्हेन यू लुक बैक, तब तुम्हें लगता है कि ओ, यहाँ से भी ये सीखा था. वो सीखते टाइम नहीं पता लगता है. सीखते टाइम तो यू आर एंजॉइंग द एक्चुअल एक्टिविटी दैट यू आर. लेकिन व्हेन यू कम आउट ऑफ द कॉलेज, व्हेन यू लुक बैक, तब तुमको दिखता है कि अच्छा यहाँ से ये वाली लर्निंग मिल गई है. तब मैं इसलिए ये वाला जो अब मैं काम कर रहा हूँ इतने अच्छे से कर पा रहा हूँ. It's like you can connect your dots backward. तभी. Exactly. That would be my exact word. Yes, exactly. Also, when you were sharing, कि मतलब ऐसा हमें PORs के टाइम पे हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इट्स लाइक कि उस टाइम पे ना तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम मिल जाता है. कॉर्पोरेट में तो हम इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना कि अच्छा ये करके देखते हैं. जैसे मार्केटिंग में होता है कि अच्छा ये कैंपेन रन करके देखते हैं क्या उसके इफेक्ट होते हैं. बट वो एक प्लेग्राउंड मिल जाता है हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए. How is it in IITs वैसे? मतलब you were saying it is not the same in IITs. When I was not supporting you when you said कि 20% पढ़ाई करते हैं. ऐसा नहीं है, वरना फिर फेल हो जाएंगे ना हम लोग. बट एक और चीज़ है, जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं ना, देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस, मतलब ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. जब हम लोग IIT में होते हैं तब हमें अपना पैशन पता चलता है. मतलब एग्जांपल्स आर सो मेनी. लाइक जो हमारे जीतू भैया हैं वो भी किसी IIT से है ना, तो मतलब IIT खड़गपुर से, मतलब तो वहाँ पे जाके हमें अपना पैशन पता चलता है कि अच्छा वी आर ऑल्सो गुड इन दिस. दैट्स वाई, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज एक सोसाइटल प्रेशर होता है ना कि यू स्टडी एंड यू अचीव समथिंग. सो वंस यू अचीव समथिंग देन यू आर ओपन, देन यू कैन एक्चुअली सी कि अच्छा और उसके बाद क्या है. देन यू एक्चुअली रियलाइज अच्छा मेरा पैशन ये है. सो ये भी एक अच्छी चीज़ है. मतलब यू फ्री माइंड से आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो एंड तुम्हें फिर सपोर्ट भी मिल जाता है थोड़ा थोड़ा करके. Exactly. I would agree on this. I would agree on this. So what do you think? मतलब IIT IIM के बाद क्या सिर्फ कॉर्पोरेट ही ऑप्शन बचता है हमारे पास? What do you think? I think you answered for yourself just in the last question. मतलब you took the example of Jeetu Bhaiya. Yeah.
तो IIT IIM के बाद तो आई वुड से तुमको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं कॉर्पोरेट में ना रहने के. It is on you. I would say that. I would say that. So again a story. It's my mind. So हमारा कुछ तो फेस्ट चल रहा था and वहाँ पे एक स्टेज शो चल रहा था. So there is this Vipul Goyan. He's a very famous comedian in India. He's an alumni of your college. He's from IIT Bombay. तो उन्होंने while he was going उन्होंने हम लोगों को एक बात बोली थी जाते हुए कि तुम IIT IIM से इसलिए नहीं हो कि तुम्हें कॉर्पोरेट में जाके काम करना है. तुम IIT IIM से इसलिए हो कि अगर तुम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करो तो यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. जो तुम्हारे पास डिग्री तुमको मिल रही है इससे तुमको जॉब मिल जाएगी फॉर श्योर. तो अब तुम लोग वो जिनको और ज्यादा बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. एंड दैट वाज हिज इंस्पिरेशन टू गो एंड वर्क और टू गो एंड स्टार्ट हिज स्टैंड अप कॉमेडी. एंड जब उन्होंने शेयर किया वो हिट किया हम लोगों को, सबको हिट किया. एवरीबडी इन द ऑडियंस वाज लाइक कि सबसे ज्यादा शोर उस पर हो जाए. क्योंकि जो तुमको डिग्री मिल गया है उसका वैल्यू है, उससे तुमको जॉब फॉर श्योर मिल जाएगा. अगर तुम बीच में 1-2 साल का ब्रेक भी ले रहे हो, यू वांट टू गो एंड परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप, यू वांट टू गो एंड परस्यू योर पैशन, तुमको स्टैंड अप करना है, तुमको डांस करना है, तुमको सिंगिंग करना है, और उसकी इक्वल बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुमको विद इन कैंपस मिलती भी है. जैसे मैंने अभी बोला बहुत 20+ इंटरेस्ट ग्रुप्स क्लब्स कमिटीज थे, उनमें से तुमको वहाँ पे अपना पैशन मिल जाता है. यू ऑल्सो शेयर्ड अबाउट आई. अगर तुमको उसको फर्दर परस्यू करना है तो तुम जाओ, जाके करो. लेकिन अगर फॉर सम केस वो नहीं वर्कआउट करता है तो तुमने इतना स्किल्स गार्नर कर लिया है कि तुमको कुछ ना कुछ जॉब तो मिल ही जाएगा based on the degree that you have from IIT and IIM, and not just the degree, based on whatever you have learned and whatever the struggle that you have faced through the phase. जो 2 साल तुम अपना पैशन परस्यू कर रहे हो या तुम अपना एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहे हो. सो आई वुड से अगर मेरे को कंपेयर करना है कि Tier 1 इंस्टीट्यूट्स और Tier 2 Tier 3 इंस्टीट्यूट्स, आई थिंक Tier 1 इंस्टीट्यूट्स के पास मतलब जो पास आउट हैं इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उनको ज़्यादा उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है क्योंकि दे हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. That's the reason I guess because इसी वजह से IIT और IIM से बहुत सारे स्टार्टअप्स इतने बनते हैं बिकॉज उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है. सो दे हैव समथिंग टू फॉल बैक. बट कोई एंड आई थिंक करना नहीं चाहता है, मतलब दे ऑलवेज वांट देयर स्टार्टअप ऑब्वियसली टू सक्सीड. या यू वर सेइंग एग्जैक्टली. एंड आई थिंक IIT बॉम्बे स्पेसिफिकली IIM कोझिकोड जितने भी IITs IIMs हैं, आई थिंक ये फंड भी करते हैं. मतलब इनका अपना इंक्यूबेशन सेंटर होता है. IIT बॉम्बे एंड IIM कोझिकोड आई एम श्योर दोनों का तो इंक्यूबेशन सेंटर है. सबका होता है. सो इवन दे आर प्रोमोटिंग दिस कि आप लोग करो, अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करो. एंड व्हेन यू सी कि यहाँ पे क्लब्स एंड कमिटीज हैं तो एक तरह से इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप अपना पैशन फॉलो करो. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इंस्टीट्यूट कैन गिव यू कि आप अपने पैशन फॉलो करें. Yeah, I have one question. I believe बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा माइंड में कि how can they decide कि they should do MBA? राइट. सो मेरे काफ़ी सारे मेंटीज ये क्वेश्चन पूछते हैं. सो हाउ आई यूजुअली टैकल दिस इज से फॉर एग्जांपल क्या तुम तो मतलब तुम तो बीटेक से ही हो, सो यू हैव डन बीटेक CS राइट. सो अगर तुम बीटेक CS से हो, सो हाउ आई टेल देम इज कि यू डोंट सी कि MBA में क्या मिल रहा है, यू सी कि तुमको जॉब क्या करना है या तुम्हारा एंड गोल क्या है. तो क्या तुम ऐसी जॉब करना चाहते हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं, तुम्हें सिर्फ ये समझ में आता है कि जो तुम कोड लिख रहे हो वो कैसे काम करता है, या जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो वो कैसे काम करता है, या तुमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि उससे फाइनली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या तुमको ये भी जानना है कि जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कितने लोग लग रहे हैं, उन लोगों का मोटिवेशन लेवल कैसे अप करना है, उन लोगों को कैसे काम करवाना है, कैसे काम एलोकेट करना है, या फिर सिर्फ तुमको इतने से सेटिस्फैक्शन है कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो काम कर रहा है और इतने से तुम खुश हो. अगर तुम इतने से खुश हो और तुम्हें बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, विच इज़ ट्रूली फाइन, ऐसा बहुत लोगों को होता है, तो फिर तो MBA करने का ज़रूरत नहीं है. तुम उसी में काम करते रहो, तुम आगे जाके प्रमोट होते होते टीम लीड बन के डेफिनेटली तुम एक अच्छे रोल पे पहुंच जाओ. लेकिन अगर तुमको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ओवरऑल काम कैसे हो रहा है, ओवरऑल कंपनी कैसे चल रही है, ओवरऑल बिजनेस कैसे चल रहा है, सारी चीज़ों को मैनेज कैसे हो रहा है, मार्केटिंग कैसे मैनेज हो रही है, तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर टाइप के रोल ज़्यादा समझ में आते हैं. प्रोडक्ट मैनेजर इज़ द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी उसी को देखना है, प्रोडक्ट का ब्रांड मैनेजमेंट भी उसी को देखना है, प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट जा रहा है, कितना उससे आउटपुट आ रहा है, कितना वो मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है. सो अगर ओवरऑल तुम्हें यस एग्जैक्टली, अगर तुम्हें ओवरऑल चीज़ों का डेवलपमेंट या ओवरऑल चीज़ों को समझना है तो आई थिंक MBA इज़ अ गुड चॉइस इन टर्म्स ऑफ रोल डिस. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट
जो भी बाकी चीज़ें तो हम कवर कर ही चुके हैं कि पर्क्स क्या हैं, उस सब की बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टच अपॉन इज आरओआई वाला फैक्टर। बहुत सारे लोग आरओआई देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अबाउट क्वेश्चन की फाइनेंशियल एक पैरामीटर आ जाता है। तो मोस्टली जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी मेंटर्स वगैरह जो भी हैं, मोस्टली वो लोग फर्स्ट ईयर पैकेज और आपकी फीस को कंपेयर करते हैं कि 25 लाख फीस लगा है तो 25 लाख का पैकेज मिल गया तो यू आर इवन, तुम ब्रेक इवन। बट आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट वे टू जज, क्योंकि तुम सिर्फ एक साल नहीं काम करने वाले हो। तुम फॉर द नेक्स्ट, मतलब अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में रहना है, फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स तुम काम करने वाले हो। तो तुम अगर वैसे फाइनेंशियली देखोगे तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। अगर तुम उसको डिस्काउंट भी कर लेते हो आज की रेट पे, मतलब बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन या जो भी तुम फैक्टर लेना चाहो, तो भी वो बहुत बड़ा नंबर आता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ मॉनेटरी देखना आई वुड से इज नॉट द राइट थिंग। तुमको क्या एलुमिनाई नेटवर्क मिल रहा है या जो भी मैंने पर्क्स मैंने मेंशन करे, तुमको जितने भी पर्क्स मिल रहे हैं और जो तुम फीस देने वाले हो, आई वुड से किसी भी अच्छे आईआईएम का या किसी भी अच्छे आईआईटी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। Right. वो उसको मॉनिटरीली या उसको न्यूमेरिकली नंबर में डाल देना पॉसिबल नहीं है। एंड अगर नंबर में डालना भी है, एग्जैक्टली नंबर में डालना भी है, तो तुम एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की अर्निंग्स को लो उसमें, कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में तुम कितना कमा लेने वाले हो, एंड उसको फिर तुम इक्वेट कर लो अकॉर्डिंगली। तो वो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, विच इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक अगर ROI वाइज डिसीजन लेना ही है। तो आई थिंक या दैट इज व्हाट आई वुड से। Also, it would expedite your career progression. मतलब अगर तुम MBA से जाते हो तो you get into a managerial position, ठीक है? अगर तुम सेम चीज़ बीटेक के थ्रू अगर आई एम जस्ट कंसिडरिंग द एवरेज केस जाते हो, तुम SD बनते हो, फिर उसके बाद आफ्टर फ्यू इयर्स लाइक 6-7 years you get into that position, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपीडिएट हो ही जाता है प्रोसेस। सो दैट्स ऑल्सो you should consider. डेफिनेटली या। Okay, so that's all about part 1 of the video, and if you have liked this video, so please comment down part 2 so that I will roll out part 2 of the video, and I'm super sure that ये जो ऐसा content है आप लोगों के लिए बहुत insightful रहा होगा, and if रहा है and you agree with me, so please comment down part 2 ताकि I can roll out part 2 of the video. Okay, so coming to the giveaway, so me and Ujjwal is going to conduct free one-on-one session with 3 candidates. So अब आपको इसके एलिजिबल होने के लिए क्या करना है, आपको कमेंट करना है इन्फॉर्मेटिव इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड वी विल पिक रैंडमली 3 कैंडिडेट्स और उनको हम 1-to-1 सेशन देंगे बाय गिविंग देम अ फ्री कोड जो आप अप्लाई कर सकते हो अनस्टॉप योर टॉप पेट में टू कनेक्ट विद अस. सो आई सी यू सून देयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग.